right? The course title is Environment Conservation and Hazard Management, and subject code is 334x03, right? This is a environment subject, right? जो आप लोग एनवायरमेंट स्टडी करते हैं या तो करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है, राइट? तो इन आवर सिलेबस there are our detailed course content, right? Unit 1 is ecology and environment, right? So unit 1 में हम what is ecology, what is environment, scope of environment, right? कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले? So this is here major learning outcome and this is topic and sub topic. तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट स्टडी में हम लोग जो है वो फर्स्ट टॉपिक है importance of environment and scope. What is the importance of environment? What is the scope of environment, right? What is the environment? Definition of environment, right? In scope of engineering branch, what is the scope of engineering student? वो सब study करेंगे. Then second point is engineering and environment issue, right? Environment में as in view of engineer and in view of other, what is the issue is we observe, right? Third is the natural system, biotic and abiotic component and process of natural system. Fourth point is ecosystem, food chain and web. So this is our syllabus we discuss in today, right? सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट, तो उसके अंदर टोटल 6 टॉपिक करने वाले हैं, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज एक्सेट्रा, नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकल, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज रिसाइकल, there are 4 R, recycle, reduce, reuse, etc, right? R आपने देखा होगा, तो वो यहाँ पर हम करेंगे. Then unit number 3 is wind power, right? यानी growth of wind power in India, type of wind turbine, type of HKWT, drugs and lift type, etc. यानी कि what is the wind power, right? यानी पवन शक्ति आपने देखा होगा, उसके ऊपर है. Next is a solar power, right? What is the solar power? Solar water heater, right? Solar cell, etc. उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे. And unit 5 is a biomass energy. So what is type of biomass energy source? Energy contained in biomass of different type of biomass conservation process, biogas production, etc. And last unit says seismic engineering and disaster management. What is disaster management? जब भूकंप होता है, right? Heavy rain होता है तब क्या करना है? Earthquake, fire, right? Gas, radioactive, etc. Right? तो टोटल 6 यूनिट इसके अंदर है और 6 यूनिट जो है वो बहुत इजी यूनिट है, राइट? आप सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, बट हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, राइट? अब वेटेज, जो यूनिट 1 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसका वेटेज है 8 मार्क. यहाँ पर 8 मार्क का यूनिट नंबर 1 में जाएगा. प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एवरीवन म्यूट योर माइक्रोफोन. पीयूष, ओके. यूनिट 2 जो है वो 10 मार्क, राइट? यूनिट 2 में से 10 मार्क है. विंड पावर 14 मार्क, सोलर पावर 14 मार्क, बायोमास एनर्जी 10 मार्क एंड सेस्मिक इंजीनियरिंग एंड डिजास्टर 14 मार्क, राइट? टोटल जो पेपर है वो जीटीयू का 70 मार्क का आता है और इंटरनल 30 मार्क का. यहाँ से टोटल जो ये मार्क है उसका ये सब्जेक्ट का 100 मार्क है, राइट? और सब्जेक्ट की क्रेडिट जो है वो 4 है, राइट? तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे या तो स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आप लिख पाओगे, क्योंकि
जो भी है वो आप ऑलरेडी स्टडी करके आए या तो बेसिक नॉलेज है, बट हम उसको थोड़ा पॉलिश करने वाले हैं यहाँ पर, हमारे एनवायरमेंट नॉलेज है उसको, राइट। कि जब हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12 या तो 10 स्टैंडर्ड तक, राइट, 10 स्टैंडर्ड तक थोड़ा बहुत कुछ है, आपका सब्जेक्ट आता था पर्यावरण गुजराती में, राइट, और इंग्लिश में एनवायरमेंट स्टडी, राइट, सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट था। तो थोड़ा बहुत कुछ एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, राइट, लैंड पोल्यूशन, वो सब पोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये टोटल 6 यूनिट यहाँ पर करने हैं। जस्ट 1 minute. Today we have start our first unit, right? A definition, scope and importance of environment science, right? Okay, what is the environment science? What is the scope of environment science, and what is the importance of environment science? Today our first topic is in ECSM. ECSM का full form है Environment Conservation and Hazard Management, right? So what is environment? Anybody know? क्या है environment? All are comfortable in English? Yes, sir. Only one answer is given. Yes, sir. Everybody is comfortable in Yes, English? sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone from Gujarati? Voice नहीं आ रहा है. My voice is clear or not? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear, sir. Okay, no problem. So what is environment? Anyone know what is environment? Definition of environment. किसको बोलते हैं environment? Please tell me. One is पर्यावरण को सर. पर्यावरण. तो पर्यावरण को क्या बोलते हैं? Nature, the thing that we obtain from nature called environment. This is the scope of environment. भावेश परिहार, आपने जो लिखा this is the scope of environment, right? The thing that we obtain from nature called environment, या तो this is the resources of environment. जो हमें नेचर से जो मिलता है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, right? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ. कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. अब जो एनवायरनमेंट कौन है मिस्टर, प्लीज आपका माइक जो है ना वो ऑफ रखिए. ऑल पार्टिसिपेट. रमेश सरासदे एंड सैम परमार. द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, यानी कि ये जो एनवायरमेंट वर्ड जो है, एनवायरमेंट वर्ड वो एक फ्रेंच वर्ड है. कौन सा फ्रेंच वर्ड? तो एनविरॉन. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में है एनविरॉन. तो एनवायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है एनविरॉन, उसके ऊपर से एनवायरमेंट हुआ है. और एनविरॉन का मीनिंग क्या होता है? तो एनविरॉन मीन्स सराउंडिंग और एनवेलोपिंग, यानी सराउंडिंग, हमारे आसपास का जितना भी सराउंड है, राइट, उसको बोलते हैं एनवायरमेंट. अब हमारे आसपास आप अभी जहाँ पर बैठे वहां पर आसपास में देखिए, आप अभी ब्रेथ ले रहे हैं, राइट, तो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रेथ आउट. तो कहाँ से ले रहे हैं? आपके एनवायरमेंट में से, राइट, आपके बाहर से, राइट. आप अभी देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर लाइट है. लाइट के अगर अंधेरा होता तो देख पाते? नहीं देख पाते. तो लाइट इज ऑल्सो including in environment, right?
तो आप जो भी देख रहे हैं या तो आपके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, राइट, वो सब जो है वो दिस इज अ एनवायरमेंट, राइट. द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनविरॉन विच मीन्स सराउंडिंग और एनवेलोपिंग, राइट. एनविरॉन का मीनिंग क्या होता है? एनविरॉन मीन्स सराउंडिंग और एनवेलोपिंग, एनवेलोप करना यानी कि हमारे आसपास में, राइट. तो एनवायरमेंट साइंस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस, यानी कि एनवायरमेंट साइंस के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती है? मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस, यानी साइंस के अंदर जो भी ब्रांच है दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट साइंस. अब कौन कौन सी ब्रांच है? तो एनवायरमेंट साइंस के अंदर इट इज इंक्लूडेड फिजिक्स, राइट, यानी भौतिक विज्ञान, लॉ ऑफ मोशन, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, light, nuclear bomb, right, etc. is covered in physics. Planet, right, air, water, this is also is in physics. तो environment science is a multidisciplinary science. environment science है ओनली environment में क्या क्या आता है? तो उसके अंदर फिजिक्स भी आता है, is included chemistry, biology. what is chemistry? रसायन शास्त्र, एसिड, राइट. आप जो केमिकल लैब में जाते हो तो दिस इज अ केमिस्ट्री. बायोलॉजी, जीव विज्ञान, राइट. मेडिकल, जो डॉक्टर जो यूज करते हैं वो भी उसके अंदर आएगा. हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री, पब्लिक हेल्थ, engineering, doctor, and so on, right. Environment science is a infinite of all disciplinary science. इसके अंदर आप सोशियोलॉजी भी आएगा, यानी कि सोशल वर्क, राइट, जो सामाजिक विज्ञान बोलते हैं वो भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, राइट, बायोलॉजी एक्सेट्रा सो ऑन. हम बता नहीं सकते, वो सब जितने भी साइंस है, जितने भी हम पढ़ते हैं वो सब एनवायरमेंट साइंस के अंदर आ जाता है, राइट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट साइंस इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. क्या हमारा मेन ऑब्जेक्ट, हमारा मेन गोल जो है एज अ इंजीनियर, राइट, आपने जो भी ब्रांच सिलेक्ट की है, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, जो भी ब्रांच है, राइट, आप लोगों का मेन गोल क्या है? कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. क्यों? क्योंकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो एनवायरमेंट हमारा प्रोटेक्शन करेगा. अगर हम ही केयरलेस हो जाएंगे एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, राइट, ये हम बहुत प्लास्टिक यूज करने लगेंगे, बहुत ही वेस्ट करेंगे, बहुत ही पोल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा? अभी आपको पता है ना कि बहुत पोल्यूशन बढ़ गया था तो क्या आ गया? कोरोना आ गया, सबको घर में बिठा दिया, राइट. क्यों? क्योंकि हमने हमने हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो मिस कर दिया. हमें जो ध्यान रखना था एनवायरमेंट का, राइट, वो हमने बंद कर दिया. कि वाटर वेस्ट, हम अगर मॉर्निंग से लेकर एंड तक बहुत वाटर वेस्ट करते हैं, राइट. उसके बाद एयर पोल्यूशन भी करते हैं कहीं ना कहीं. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आप यूज करते हो वो सब. तो हम लोग जो है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ही हमारा अस्तित्व रहेगा, हमारा हमारा प्रोटेक्शन होगा, राइट. अगर हम एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो खुद का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, राइट. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ही एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, या तो कोई एनजीओ है, समाज सुधारक संस्था, वो ही उसका प्रोटेक्ट करेगा, या तो मेरा फ्रेंड ही नहीं करता तो मैं नहीं करने वाला. ऐसा नहीं है. हमें खुद अपने आप सेल्फ अपने आप ही प्रोटेक्शन करना है और दूसरों को उसके बारे में समझाना है. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट साइंस इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. क्या? एनवायरमेंट को बचाना है. अगर वो बच गए तो हम बच गए, वरना सब कुछ खत्म, राइट. तो दिस इज द एनवायरमेंट. मीत पटेल, एनोशन मत करिए स्क्रीन के ऊपर. आया समझ में इतना डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट साइंस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just 1 minute. This is also definition of environment.
कि ऑल द फैक्टर सच एज, जितनी भी डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी थे, जितनी भी ब्रांच थी, कि ऑल द फैक्टर सच एज फिजिकल यानी कि भौतिक विज्ञान, राइट, जियोग्राफिकल, व्हाट इज जियोग्राफिकल, जो हमें अर्थ के ऊपर जो ग्राफ या तो वो जिसको मैप बोलते हैं उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल, राइट, केमिकल, biological and ecological which affect human life and its existence on this planet are called environment, right? All factors such as physical, geographical, chemical, biological, ecological, medical, life science, forest, etc, right? ये सब जो है वो हमें इफेक्ट करता है, हमारी लाइफ के लिए यूजफुल है, कि जो भी फैक्टर है वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और उसके अलावा कि सपोज इसमें से केमिकल नहीं होगा या तो बायोलॉजिक नहीं होगा या तो इकोलॉजी नहीं होगा, राइट, ये सब में से अगर कुछ ना कुछ मिस होगा तो क्या होगा, हमारी लाइफ जो है वो जो हम अभी इजीली सरवाइव कर रहे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। हमारा एग्जिस्टेंस के लिए, कि हमारे जिंदा रहने के लिए, हमको सरवाइव करने के लिए जो भी फैक्टर रिक्वायरमेंट है, यानी वो वाटर है, फूड है, आपका व्हीकल है, राइट, अभी आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो मोबाइल भी एक फैक्टर ही है। तो हमारा अस्तित्व रखने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जो भी फैक्टर रिक्वायरमेंट है वो सब फैक्टर इस प्लेनेट के ऊपर का एनवायरमेंट है, राइट, कि ऑल द फैक्टर, पॉइंट रीड करिए, all the factors such as physical, geographical, chemical, biological and ecological which affect human life and its existence on this planet are called environment। क्यों अर्थ ही के ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हमें जो फैक्टर रिक्वायरमेंट है वो हमें अर्थ के ऊपर से मिल जाता। अगर मून या तो मार्स के ऊपर वो सभी फैक्टर यहाँ पर जो है वो वहां पर अगर अवेलेबल होते तो वहां पर भी हमारा एग्जिस्टेंस होगा ना, बट वहां पर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, वहां पर हम जिंदा नहीं रह सकते। मून है, राइट, उसके बाद मार्स है, राइट, वहां पर हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट फैक्टर है, हमारा जिंदा रहने के लिए जो फैक्टर रिक्वायरमेंट है वहां वो मिसिंग है, लेस है, राइट, तो वहां पर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीज हम नेचर से लेते हैं वो सब एनवायरमेंट में आता है। द एनवायरमेंट इंक्लूडेड, अब एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? द एनवायरमेंट इंक्लूडेड अर्थ, यानी सबसे पहला जो प्लेनेट है वो अर्थ, राइट, लेक, अगर लेक क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है? हमें लेक में से मिलता है, राइट, तो अर्थ, लेक, forest, farm, vegetation, and other biological life such as animal, plants, bacteria, and microorganism। ये सभी जो है कि हम एनिमल को भी यूज करते हैं, प्लांट्स को भी यूज करते हैं, बैक्टीरिया थोड़े बहुत है वो यूज भी हो गए और आपके लिए अनयूज भी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देख नहीं सकते वो सब जो है, राइट, के जैसे मिल्क में से दही बनता है, राइट, तो वो माइक्रो बैक्टीरिया वहां पर यूज हो, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो बैक्टीरिया वहां पर वर्क करता है, राइट। तो ये सब जो है वो एनवायरमेंट के अंदर कंसीडर होते हैं, राइट। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट आर बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। अब एनवायरमेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वन इज बायोटिक एनवायरमेंट एंड सेकंड इज अबायोटिक एनवायरमेंट। व्हाट इज बायोटिक एनवायरमेंट? तो जिसके अंदर जान है, जो लिव कर सकते हैं, राइट, जिसके अंदर लिव लाइव है, राइट, वो सब है बायोटिक एनवायरमेंट। और जिसको बोलते हैं सजीव, राइट, लिविंग बीइंग, राइट, आप में से आंसर दिया है लिविंग बीइंग। तो जो लोग जिंदा है या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अपने आप, राइट, किसी और की ओर से नहीं, तो वो सब है बायोटिक एनवायरमेंट यानी सजीव पर्यावरण। एंड सेकंड इज अबायोटिक एनवायरमेंट, जिसके अंदर जीव नहीं, जिसको आप बोलते थे निर्जीव, राइट, तो एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव, राइट। तो व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक एनवायरमेंट? तो बायोटिक एनवायरमेंट इंक्लूडेड all living organism and biological life such as animal, bird, forest, reptile,
इंसेक्ट, रेपिटाइल यानी आप पता है ना जो सांप जैसा आता है, सांप, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, उसको सबको रेपिटाइल बोलते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल में जो भी है वो, बर्ड, एनिमल, राइट। इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी जीव जंतु हो, राइट। लिजर्ड उसमें आ जाएगी, जितने भी जीव जंतु है उसको इंसेक्ट बोलते हैं। बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्जिया, फ्यूग, एक्सेट्रा, ये सब जो है उसको बोलते हैं बायोटिक एनवायरमेंट। अब अबायोटिक एनवायरमेंट, तो अबायोटिक एनवायरमेंट is known as non-living component, all non-living component वो जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट में आता है, सच एज लैंड, माउंटेन, रिवर, नदियाँ, राइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी भेज, जो एटमॉस्फेयर में भेज रहता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, वाटर, वेपर, सैंड, डस्ट, क्लाउड, एक्सेट्रा, these all non-living component is known as abiotic environment. Understand? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुजराती Yes, है sir. कोई હા છે સર. तो એને પણ સમજાય છે? હા સમજે છે. हाँ सर, हाँ सर. Okay, क्योंकि गुजराती में भी है वो मैं आपको ये खत्म होता है ना उसके बाद दिखाता हूँ। હા કઈ નહીં સર. ओके, तो what is biotic and what is abiotic is complete? Yeah, any doubt? Yes, sir. No, sir. No, sir. Very good. No, sir. Then next is a scope of environmental science. एनवायरमेंटल साइंस का स्कोप क्या है एज अ इंजीनियर? पता है आपको क्या है एनवायरमेंट साइंस का स्कोप? No, sir. नो सर। आप लोगों ने, आपका जो नेम है वो सबने यहाँ पर जो आपके 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट में नेम है वही लिखा है कि कोई अलग है? હા वही સર लिखा है. यही है. वही है सर. सभी के अटेंडेंस में ये नाम यही आपको अवेलेबल है ना? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. हाँ सर. ओके, अब एक 2 मिनट के लिए सब अपने माइक ऑफ कर दो, क्योंकि मैं ना स्क्रीनशॉट अटेंडेंस पर्पस के लिए ले रहा हूँ। तो 2 मिनट के लिए आपके माइक जो है माइक्रोफोन ऑफ कर देना। ओके, तो स्कोप ऑफ एनवायरमेंट कौन कौन से स्कोप है, राइट? तो आवर सराउंडिंग इंक्लूडेड फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट। कि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसके अंदर फॉरेस्ट है, जंगल है, रिवर यानी कि नदियां है, माउंटेन यानी पहाड़े है, डेजर्ट यानी रन है, या फिर तो ये सबका कॉम्बिनेशन करके कि कोई जगह पर डेजर्ट और फॉरेस्ट साथ में होगा, डेजर्ट के अंदर रिवर भी होता है, डेजर्ट के अंदर माउंटेन होगा, राइट? वो सबका कॉम्बिनेशन है। अलग अलग एरिया में आप जाओगे तो आपको अलग अलग सराउंडिंग मिलेगा, राइट? तो मोस्ट ऑफ अस लिव इन लैंडस्केप, राइट? क्या उसमें से सबसे ज्यादा लोग जो है वो कहाँ पर रहते हैं? जमीन के ऊपर रहते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ लिव इन लैंडस्केप दैट हैव बीन heavily modified by the human being in village, town and city। के हमें पता है कि सबसे पहले ज्यादा जो था जंगल था, और जैसे जैसे ये जो पॉपुलेशन यानी कि वस्ती जो है वो इंक्रीज होती जाती है, राइट? तो जो जंगल है वो मॉडिफाई होते जाते हैं, किस किस में? तो कि विलेज में, टाउन में और सिटी में। कि सिटी जो है वो भी एक्सपांड हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, टाउन जो है शहर वो भी एक्सपांड हो रहा है, गांव जो है वो भी एक्सपांड हो रहा है, right? But even those of us who live in city get our food supply from surrounding village। और जो लोग विलेज में रहते हैं उसको तो विलेज में से खेती बाड़ी करके, फार्मिंग करके वो उसका फूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। बट जो सिटी में जाते हैं तो उसको कहाँ से मिलेगा? तो उसके आसपास के विलेज है वहां से उसको उसका फूड सप्लाई मिल जाता है। वी यूज वाटर टू ड्रिंक एंड अदर डे टू डे एक्टिविटी, राइट? के वाटर जो है वो हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, और जितना पीते हैं उसके बहुत ज्यादा
उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा वाटर जो है वो हम अदर एक्टिविटीज में यूज करते हैं, राइट। ब्रेथ द एयर, वे हम लोग जो है एयर अपने अंदर ब्रेथ करते हैं, राइट। वी यूज रिसोर्सेज लाइक मिनरल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा जो है वो सब हम यूज करते हैं, फ्रॉम विच फूड इज मेड, राइट। तो दिस ऑल आर द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट साइंस। क्या आप एनवायरमेंट का यूज करके आपका सर्वाइव कर सकते हैं, करते हैं, और जो भी पैसे आपके फैमिली को और जो भी चीज है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब स्कोप है, राइट। आवर डिपेंड्स ऑन नेचर इज सो ग्रेट that we cannot continue to live without protecting the earth environment resource। अब खाली ऐसा देखिए कि अगर पेट्रोल और डीजल वो खत्म हो जाता है तो क्या होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो क्या होगा। खाली एक बार सोचिए, ऐसा होने वाला नहीं है। देखो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं खत्म होने वाली, पेट्रोल डीजल थोड़ी ईयर के बाद खत्म हो जाएगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होता, हमारा क्या होता, हम कैसे सर्वाइव कर पाते, राइट। पेट्रोल डीजल अगर वाटर ही नहीं होता तो क्या होगा, राइट। तो ये सब स्कोप है क्या, अगर वाटर जो है, राइट, तो वाटर को क्लीन कैसे करना है, कि अगर पीने लायक वाटर नहीं है, राइट, तो वो उसको कैसे करना है, फूड जो है रिसोर्सेस है वो सब कैसे। तो ये जो भी हमने आगे जितने भी फैक्टर देखे हमारा सर्वाइव एग्जिस्टेंस के लिए, लिव होने के लिए, सर्वाइव होने के लिए, वो सब हमारा हमारे लिए स्कोप है। देखिए अब 10 मिनट ही है, 10 मिनट में जितना होता है ना उतना करेंगे, बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट, तो जहां से बंद होता है वहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट। So this is all are the scope of environment science, right। अब एक काम करिए, मैं फर्स्ट यहाँ से अभी जो स्क्रीन है वो उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। सर पहले से निकल लिया। सबने, जिसका बाकी है वो स्क्रीन देखिए, जो भी मैं No, शेयर sir. करता हूँ ना वो उसके आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सबका हो गया है स्क्रीनशॉट के बाकी किसी को? Yes, sir. हो गया बाकी मेरा। है सर। बाकी है सर। बाकी है सर। जिसको बाकी है वो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसके। सेंस करूँ स्लाइड? हाँ सर चेंज सर पहले वाला का ही है। बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरमेंट, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, राइट। गुजराती के लिए और है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जी सर। नेक्स्ट Yes, sir. स्कोप ऑफ एनवायरमेंट साइंस। Yes, sir. Change. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। चलो आप लोग बताओ क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। सबसे पहला हमें जिंदा रखा वो इसका इम्पोर्टेंट है, राइट। Yes, sir. Food देता है। Sir. पूरा अभी आगे जिंदा भी रखेगा वो इम्पोर्टेंस है, राइट। जी Yes, sir. सर। Yes. तो बस वो ही दो टॉपिक में आ गया, बट डिटेल में अगर आपको करना है तो क्या है एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट, कि एनवायरनमेंट इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। हमने आगे देखा कि एनवायरनमेंट ओनली सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है वो सब सब्जेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर हो जाते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। आयुष ने लिखा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना के, then it is an
इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट. व्हाट इज इंटीग्रेशन? एक मैथमेटिक्स जो आप सेम 2 में जाएंगे तो वहां पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, राइट. इंटीग्रेशन यानी जो अलग अलग सब्जेक्ट जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, वो सभी को बंच में लाकर एक बॉक्स में पैक करना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. जो अलग अलग टुकड़े आप जो पढ़ रहे हैं, राइट, क्या आप 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस और स्टडी अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं, बट एनवायरमेंट साइंस में क्या होगा, साइंस और सोशल साइंस दोनों को मिक्स कर दिया है, यानी कि दोनों को ज्वाइन कर दिया, प्लस करना. इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है समेशन करना, प्लस करना, राइट. तो एनवायरमेंट इज अ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बट इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट दैट इंक्लूडेड बोथ साइंस एंड सोशल साइंस. इसके अंदर साइंस में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो भी आ जाएंगे, और सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं. टू अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी. अब एनवायरमेंट आपको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, कि बायोलॉजी समझना होगा, केमिस्ट्री समझना होगा, फिजिक्स, जियोग्राफी, रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन इश्यू, राइट. तो आपने इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया तो आप फिजिक्स भी समझने वाले हैं, केमिस्ट्री भी समझने वाले हैं, मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट आएगा वो भी समझने वाले हैं, इकोलॉजी करके सब्जेक्ट आएगा वो भी समझने वाले हैं. बट उससे पहले हम एनवायरमेंट के अंदर ये सभी सब्जेक्ट का जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, यानी कि शॉर्ट नोट, वो सीखने वाले हैं, राइट. एंड पॉपुलेशन इश्यू, आपको पता है पॉपुलेशन इश्यू 2 कंट्री में है, पहला इंडिया और दूसरा चाइना. राइट, मालूम है. तो व्हाट इज द पॉपुलेशन इश्यू, राइट. तो वो भी मेन जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, कौन सा अफेक्टेड है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो, राइट. क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनवायरनमेंट को हानि ज्यादा होगी, राइट. थस द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी इज extremely wide and cover some aspect of nearly our major discipline, right. इसीलिए मैंने बताया कि स्कोप, जो एनवायरनमेंट का स्कोप है, स्कोप यानी क्या, पबजी में आता है कोई स्कोप, हाँ 6x 4x 4x, क्या करते हैं स्कोप के हेल्प से, देखते हैं दूर सर. से हेडशॉट लगाते हैं. दूर का देखते हैं ना हम स्कोप का यूज करके. यस सर, Yes, दूर का sir. तो देखते हैं. बस एनवायरनमेंट Yes, स्टडी yes. का भी स्कोप जो दिखे But नहीं, headshot. जूमिंग, हाँ बस, तो वो ही स्कोप है. जैसे आप पबजी में स्कोप कहीं से भी फाइंड करके आपके पास रखते हैं ना, वैसे एनवायरनमेंट स्टडी का स्कोप बहुत है, दैट ह्यूज स्कोप है. हम यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करें या लॉन्ग में एक्सप्लेन करें तो भी खत्म नहीं होगा, उतना स्कोप है, राइट. और आपके माइंड में भी अगर कोई नया के मुझे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए करना है तो वो भी एक स्कोप ही है, राइट. एंड वी विल इन अ वर्ल्ड इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. पता है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अभी लिमिटेड है वर्ल्ड के अंदर, राइट. वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो हमें भी, अगर आप एज्यूम करो तो भी डर लगता है, राइट, कि अगर कोल खत्म हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा हो जाएगा. वाटर जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट. क्योंकि वाटर जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर लैंड 1 पार्ट लैंड है और 3 पार्ट वाटर है, बट वो वाटर हम यूज नहीं कर सकते हैं, राइट. उसके बाद पेट्रोल, डीजल, मिनरल, वो सब जो है वो सब लिमिटेड है, राइट. वाटर, एयर, सोइल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है. कौन कौन से, तो वाटर, एयर, सोइल, मिनरल, ऑयल, द प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द, कहाँ से मिलता है सब, द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फ्रॉम livestock are all the part of our life support system. Without them life itself will be impossible. ये सबके अगर सब नहीं है तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट ये सब में से 2-3 भी प्रोडक्ट नहीं है तो हमारा जो जीना है वो बहुत हार्ड हो जाए. द इम्पोर्टेंट ऑफ एनवायरनमेंट, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका.
अभी बाकी है, ओनली 2 पॉइंट ही किया, राइट? और भी इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है ना, हेलो, यस सर। सर तो Yes, जो sir. लोग गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं वो 5 या 10 Yes, sir. मिनट के लिए वापस रिज्वाइन करना सेम लिंक पर, ठीक है? अभी Yes, 1 sir. मिनट के बाद Okay, sir. ऑटोमेटिक मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो विद इन 1 और 2 मिनट में वापस जो लोग गुजराती में है वो लोग रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? Yes, sir. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, right? This is more importance of environment. As we keep on increasing in number, the quantity of resources is of us use also increase. The earth cannot be expected to sustain this expanding level of utilization of resources. क्या हमें पता है population increase हो रहा है तो सब use भी increase होता है, right? Added to this is misuse of resources. We waste or pollute large amount of nature clean water. We create more and more amount of plastic that we discard after the single use. We waste large amount of food. पता है ना, कहीं कोई किसी के वहां पर कोई प्रसंग है या तो कोई पार्टी है तो वहां पर कितना फूड का मिसयूज होता है, राइट? विच इज डिस्कार्ड ऑफ गार्बेज। हम डेली आप घर पर भी देखोगे सभी के घर से